Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Lasit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss traveling allowance. It is updated one, 2026 already I have mentioned, and it is part one. So in this part, I will discuss Delhi allowance. It is supplementary rule 51, reimbursement of hotel charges. Again, SR 51, reimbursement of taxes or GST. Again, SR 51, timing restrictions, length of absence from headquarter, regulation of Delhi allowance under special circumstances. Definitely, the session would be interesting one. Very lucidly and very briefly, I try to explain, and you can get complete information about these parts. So, my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Join my WhatsApp number. It is 83277782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My two Telegram channel links are there. One is t.me/bapi2034 and second Telegram channel link t.me/asit2034. If you join my channel also, you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start traveling allowance. It is related to part 1. So first you see, in regarding to the traveling allowance, what is pay? How to define pay? So pay means you consider the basic pay, okay, drawn in the pay level in the pay matrix, okay. इसमें NPA non practicing allowance कि military service pay कि any other type special pay, these are not included, okay. So pay means actually regarding to the traveling allowance, only you consider the basic pay. Other जैसे non practicing allowance, so basically for the medical personnel, doctors, military service pay, defense department, or any other special pay. Special pay, suppose due to pay revision, at that time also special pay given to the concerned employee. So these things are not included in the pay actually when we consider pay for traveling allowance. Next one, very interesting one. Second one, you see transit between two posts. It is supplementary rule 19. You remember supplementary rule, it is important. Rule position, you important one. Suppose if an employee is in transit between two posts, the TA is given as per the lower pay level. Suppose for example, you see one employee working as TGT, but now promoted to PGT, okay, and station also changed. So transit means actually journey time, okay, relieved from TGT post, okay, and then it means he is on journey to join PGT post. So it is the transit time. So transit time actually journey period. So TA is given according to the lower pay level, according to the pay level of the lower post transit period में. Have you clearly understood or not? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SR 19 उसको एक्सप्लेन किया है. तो ट्रांजिट पीरियड बेसिकली जर्नी पीरियड, जब एक लोअर पोस्ट से प्रमोट होकर एक हायर पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए जा रहा है और स्टेशन चेंज हो गया, हेडक्वार्टर चेंज हो गया, और वो जो जर्नी पीरियड में है, तब उसका जो ट्रैवलिंग अलाउंस एक्चुअली किस बेसिस में कैलकुलेट होगा, तो बेसिकली जो लोअर पे लेवल है, ठीक है. तो ये सप्लीमेंट्री 19 बोल रहा है. नेक्स्ट वन हम थोड़ा दिल्ली अलाउंस के ऊपर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी डीए एक्चुअली 50% होने के बाद आप जानते हो कि चाहे होटल अकोमोडेशन, लोकल ट्रैवल की फूड पे बिल्स में 45% इंक्रीज हो चुका है, ये लेटेस्ट है. तो दिल्ली अलाउंस एक्चुअली सप्लीमेंट्री रूल 51, यू सी सप्लीमेंट्री रूल 51, जस्ट यू रिमेंबर. अच्छा, ये दिल्ली अलाउंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? So इसमें एक्चुअली मीन्स द अमाउंट गिवन टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू कवर होटल स्टे और गेस्ट हाउस, लोकल ट्रैवल आप कंसिडर करेंगे विद इन द सिटी, एंड फूड एक्सपेंसेस. तीन चीज इसमें आता है. जो अमाउंट दिल्ली अलाउंस में हम तीन चीज के ऊपर अभी ध्यान देंगे. एक है होटल स्टे है,
और एक है लोकल ट्रैवल विद इन द सिटी एंड फूड एक्सपेंसेस, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर्स. So you see, it is pay level given, hotel accommodation per day, local travel within the city, right, and food bills per day. ठीक है, पे लेवल के हिसाब से देखिए, इसमें पे लेवल के हिसाब से 5 एक्चुअली डिवीजन है. जो बाइफर्केशन है वो 5 पे लेवल्स में किया गया है. फर्स्ट देखिए लेवल 14 एंड अबोव होटल अकोमोडेशन फर्स्ट देख लीजिए, पर डे 9375. फर्स्ट होटल अकोमोडेशन देखिए, ओके, लेवल 14 एंड अबोव अप टू 9375. लेवल 12, 13 एंड 13A इट इज 5625 होटल अकोमोडेशन पर डे. लेवल 9 to 11 it is up to 2812 rupees 50 paise. Okay, 9 to 11. Level 6 to 8 it is up to 937 rupees 50 paise, and level 5 and below it is up to 562 rupees 50 paise. ये होटल accommodation per day. 9375. पे लेवल 12 to 13 है 5625. लेवल 9 to 11 2812 rupees 50 paise. 6 to 8 it is 937 rupees 50 paise. लेवल 5 and below it is up to 562 rupees 50 paise. it is होटल accommodation per day, ठीक है. अच्छा, देन हम चलेंगे लोकल ट्रैवल्स विद इन द सिटी. लोकल ट्रैवल्स विद इन द सिटी आप देखिए, पे लेवल 14 एंड अबव, एसी टैक्सी एक्चुअल एक्सपेंसेस विद इन द सिटी में. जो ऑफिसर्स एक्चुअली लेवल 14 एंड अबव है, तो जब वो लोकल ट्रैवल करेंगे विद इन सिटी में, एसी टैक्सी एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है. लेवल 12 to 13A एसी टैक्सी, मगर इसमें लिमिट है अप टू 50 किलोमीटर पर डे. पर डे एक्चुअली 50 किलोमीटर मूवमेंट हो सकता है एसी टैक्सी में, ठीक है. इट इज लेवल 12 to 13A. लेवल 9 to 11 इट इज नॉन एसी टैक्सी पर डे एक्चुअली अप टू 422 रुपीज 50 paise. यहां पर नॉन एसी आ गया, ओके. इट मीन्स पे लेवल 11 एंड बिलो, ओके. तो लेवल 9 to 11 इट इज नॉन एसी टैक्सी, मगर पर डे ट्रैवल विद इन द सिटी, and this amount it is up to 422 rupees 50 paise can be reimbursed, not more than that. Level 6 to 8 again non AC taxi, it is per day up to 281 rupees 25 paise per day, ठीक है. Again the local travel within the city and non AC taxi, the officers level 6 to 8 they can hire, but the amount can be reimbursed up to rupees 281, okay, rupees 25 paise. Level 5 and below non AC taxi per day reimbursement it is up to 141 rupees 25 paise. तो यदि एसी का बात आएगा लेवल 12 एंड अबोव एसी टैक्सी, मगर 14 एंड अबोव कोई लिमिट नहीं है एक्चुअल एक्सपेंसेस. लेवल 12 13 है एसी टैक्सी, मगर लिमिट है अप टू ट्रैवल अप टू 50 किलोमीटर पर डे. एंड अदर जो लेवल 11 एंड बिलो ये सब नॉन एसी टैक्सी है, और पर डे ऑल्सो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी दे दिया गया लिमिट. जैसे 9 to 11 है 420 रुपीज 50 paise पर डे. ये लेवल 6 to 8 है 281 रुपीज 25 paise पर डे, एंड लेवल 5 एंड बिलो अप टू 141 रुपीज 25 paise पर डे, ठीक है. ये हो गया लोकल ट्रैवल विद इन द सिटी. अभी फूड बिल्स के ऊपर आएंगे. फूड बिल्स में आप देख लीजिए लेवल 14 एंड अबव फूड बिल्स इट इज अप 1500, ओके, इट इज अप टू 1500. 12 to 13A 12 to 13 है इट इज 1250, राइट. लेवल 9 to 11 इट इज 1125. लेवल 6 to 8 इट इज अप टू 1000 रुपीज. लेवल 5 and below up to 625, मगर टाइमिंग इज देयर. देन आफ्टर दैट आई विल डिस्कस specific time. Suppose less than 6 hours it is 30%, clear. Less than 6 hours 30%. 6 hours up to 12 hours, 6 hours up to 12 hours it is 70%, and more than 12 hours 100%. So like this I will discuss also, but now you remember pay level wise. So food bills level 14 and above up to 1500.
12 to 13 है अप टू 1250, लेवल 9 to 11 1125, लेवल 6 to 8 अप टू 1000, लेवल 5 एंड बिलो अप टू 625। मगर उसमें हमको टाइम जो है, टाइम को देखना पड़ेगा। मैं जैसे बता, लेस देन 6 आवर्स, 6 आवर टू 12 आवर्स एंड मोर देन 12 आवर्स ऑल्सो आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट टाइम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ये अमाउंट जो है इसको आपको रिमेंबर करना है। होटल अकोमोडेशन पर डे, लोकल ट्रैवल विद इन द सिटी एंड फूड बिल। ठीक है। नेक्स्ट वन SR 51 सप्लीमेंटरी रूल 51 बोल रहा है रीइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस। तो इसमें पे लेवल 8 एंड बिलो, इसको देख लीजिए। पे लेवल फॉर पे लेवल 8 एंड बिलो, ठीक है, एंड बिलो, इसमें क्लियरली मेंशन है कि होटल क्लेम विद इन लिमिट कैन बी टेकन विदाउट बिल्स, विदाउट बिल्स, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए। इसमें कोई बिल का जरूरत नहीं है जब पे लेवल 8 एंड बिलो। जो पे लेवल 8 एंड बिलो में बता रहा हूं, पे लेवल 8 एंड बिलो में बेसिकली आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए। जो 6 to 8 था होटल बिल 937 रुपीज 50 पैसे था, 6 to 8, एंड 5 एंड बिलो था 562 रुपीज 50 पैसे। अब मैं डिस्कस किया, तो इसमें आपको सिंपली याद रखना है पे लेवल 8 एंड बिलो देयर इज नो नीड ऑफ एनी बिल। ओके, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ सबमिशन ऑफ बिल, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए। सर्टिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दीजिए पीरियड ऑफ स्टे और जो होटल था किस प्लेस में था और होटल नेम, इतना ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन। एक सर्टिफिकेट आप खुद लिख कर दे दीजिए कि मैं इस पर्पज में गया था और मैं इस प्लेस में स्टे किया था, और क्योंकि उसी में मेरा जो टूर ट्रेनिंग जो था वही प्लेस में था और मेरा प्लेस ये था और होटल का नाम, ये एक सेल्फ सर्टिफाइड आप दे दीजिए। उसमें कोई बिल का जरूरत नहीं है, मगर इसमें याद रखना है पे लेवल 8 एंड बिलो। मगर उसमें एक एक्सेप्शन दे दिया कि इन क्लास X सिटीज पेमेंट इज ओनली विथ बिल्स। यदि इसमें कोई नहीं है कि पे लेवल 8 एंड बिलो, इसमें कुछ नहीं है। क्लास X सिटीज में चाहे पे लेवल 8 एंड बिलो हो, मगर आपको जो आप पेमेंट कर रहे हो उसका रिइंबर्समेंट होगा, आपको बिल सबमिट करना है। और लिमिट है रुपीज 1250 पर डे फॉर लेवल 8 एंड बिलो, लिमिट ये दे दिया गया। ठीक है। इन क्लास X सिटीज में यदि आप स्टे करते हो होटल में, वो पर जो लिमिट है 1250 पर डे है फॉर लेवल 8 एंड बिलो, तो इसको आपको बिल देना पड़ेगा। ठीक है। नॉर्मली आपको क्लास X सिटीज के अलावा जो है उसमें बिल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 6 to 8 पर डे 937 रुपीज 50 पैसे, एंड जो लेवल 5 एंड बिलो है उनके लिए पर डे स्टे इन द होटल 562 रुपीज 50 पैसे। ठीक है। उसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए, कोई बिल का जरूरत नहीं है। आप पे लेवल को याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और जो क्लास X सिटीज में पे लेवल 8 एंड बिलो पर डे जो है वो आपको एंटाइटलमेंट है 1250 रुपीज पर डे है, और उसमें बिल सबमिट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस और GST। सप्लीमेंटरी रूल 51 बोल रहा है, अच्छा ये जो होटल का एंटाइटलमेंट है, क्या उसमें GST इंक्लूड है? क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंक्लूड है? इंक्लूड नहीं है। वो जो एंटाइटलमेंट है, जैसे आप देखा 14 एंड अबव पर डे होटल 9375 है, उसमें GST इंक्लूड नहीं है। GST उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, GST एक्स्ट्रा है। ये ओनली विदाउट GST है। कि हमारा जैसे पे लेवल 12 एंड 13, जैसे इसमें दिया है पे लेवल 12 to 13A होटल अकोमोडेशन पर डे इट इज रुपीज 5625, ये है ना लिमिट, एंटाइटलमेंट है। क्या इसमें पर डे, क्या इसमें GST इंक्लूड है? GST इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड ऑफ GST। तो उसके ओवर एंड अबव GST आएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, और रीइंबर्समेंट होगा। अभी क्लियर अंडरस्टूड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सक्लूडिंग ऑफ GST जो एंटाइटलमेंट है। कि आप और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप बता रहे हो कि होटल पर डे जैसे पे लेवल 9 to 11 की पे लेवल लेके 6 to 8, इसमें 937 रुपीज 50 पैसे है पर डे। ओके, क्या इसमें GST इंक्लूड है? नहीं, GST इंक्लूड नहीं है। ओके, उसके ऊपर आप GST कैलकुलेट करके आप रीइंबर्समेंट होगा। ओके, ये विदाउट GST एंटाइटलमेंट।
चलो सेम थिंग हियर यू सी होटल लिमिट्स गिवन आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी और टैक्सेस, उसमें जीएसटी और टैक्सेस इंक्लूड नहीं है जो एंटाइटलमेंट में बताया। जीएसटी विल बी पेड एक्स्ट्रा, टैक्सेस विल बी रीइंबर्स्ड ओवर एंड अबव द एंटाइटलमेंट। ओके, तो कैलकुलेशन आप देख लीजिए, यहां पर एक एग्जांपल में दे दिया, यहां पर एक एग्जांपल है लेवल 12, 13 एंड 13A में। अच्छा, इस लेवल में आपका जो होटल अकोमोडेशन पर डे है इट इज ₹5,625 है कि नहीं पर डे। अच्छा, तो ये है एंटाइटलमेंट, ये है सेम थिंग आई हैव रिटन। अच्छा, सपोज आप होटल रेंट है 5,500 रुपीज, जो होटल रेंट है 5,500 रुपीज। ओके, तो उसके ऊपर जीएसटी 12% होगा, तो ये तो लिमिट में है। विदाउट जीएसटी जो लिमिट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर होना चाहिए विदाउट जीएसटी, 5,625 के अंदर होना चाहिए। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वो तो है 5,500, जीएसटी 12%, तो आप कैलकुलेट करके देखिए 6,160। यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आपका जो एंटाइटलमेंट है वो विदाउट जीएसटी है। ठीक है, तो जब हम इंक्लूडिंग जीएसटी करेंगे वो एंटाइटलमेंट से ज्यादा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिइंबर्स होगा। मगर याद रखिए जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है वो विद इन एंटाइटलमेंट में होना चाहिए। जैसे जो यहां पर पे लेवल में लिया 12 to 13A, पर डे एंटाइटलमेंट होटल अकोमोडेशन है 5,625, सो विदाउट जीएसटी उसके लिमिट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी तो ओवर एंड अबव है। इसमें मुझे लगता है आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्जेस, जो लोकल ट्रैवल दिया है यहां पर एक याद रखिए, यदि आप रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग जो लोकल ट्रैवल आप कर रहे हो, अगेन SR 51 इसमें दिया है कि रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्जेस लोकल ट्रैवल फॉर पे लेवल 11 एंड बिलो, पे लेवल 11 एंड बिलो, इस केस में आपको कोई बिल देना जरूरत नहीं है। यदि आप लोकल एरिया में ट्रैवल करते हो तो उसमें पे लेवल जो 11 एंड बिलो है उसमें आपको जो मैं बताया था 11 एंड बिलो में लोकल ट्रैवल के ऊपर मैं बताया था, जैसे 9 to 11, जैसे पे लेवल देखिए 9 to 11 लोकल ट्रैवल में ये था नॉन एसी टैक्सी, मगर रीइंबर्समेंट कितना मैक्सिमम 422 रुपीज 50 पैस ये था ना। तो ये ये सब नॉन एसी आ जाएगा, नॉन एसी आ जाएगा, है कि नहीं, ये था। तो उसमें 11 एंड बिलो आपको बिल देना नहीं पड़ेगा, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन दे दीजिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन में ट्रैवल डिटेल्स दे दीजिए, मैंने ट्रैवल डिटेल्स में पीरियड ऑफ ट्रैवल, आप कितना घंटा ट्रैवल किया, व्हीकल नंबर क्या है, आप ओनली सेल्फ सर्टिफाइड करके दे दीजिए, उसमें कोई बिल का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपका जो लोकल ट्रैवल में 6 to 8 था, लेवल 6 to 8 जो लेवल में कितना था ना 281 रुपीज 25 पैस ये था, इतना एक दिन में रिम्बर्स होगा लोकल ट्रैवल में, है कि नहीं। तो ये सब पे लेवल 11 एंड बिलो सब नॉन एसी है, ओनली पे लेवल 12 एंड अबव एसी है। मगर एसी ट्रैवल में वो है 14 एंड अबव वो एक्चुअल एक्सपेंसेस, मगर जो पे लेवल 12 to 13A है वहां पर भी लिमिट है, एसी टैक्सी मगर 50 किलोमीटर पर डे। तो आपको याद रखना है कि पे लेवल 11 एंड बिलो, ओके, यदि आप लोकल ट्रैवल करते हो तो इसमें जो नॉन एसी टैक्सी में आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, और जो रीइंबर्समेंट का लिमिट है, मगर इसमें आपको बिल देना नहीं पड़ेगा, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ट्रैवल डिटेल्स कि आप पीरियड कितना घंटा ट्रैवल किया, पीरियड ऑफ ट्रैवल और व्हीकल नंबर लाइक दिस। तो ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज, अभी यही फ्री फूड एंड स्टे इज प्रोवाइडेड। सपोज आप टूर ट्रेनिंग में चले गए और वहां पर आपको फ्री फूड स्टे मिल रहा है, तो वहां पर कोई डीए नहीं मिलेगा, जो आपका डेली अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। ओके, ओनली लोकल ट्रैवल एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड। तो फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज में ओनली ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेगा। और पहले क्या था, जो ओल्ड रूल में था 25% ऑफ डीए, ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो फ्री फूड एंड स्टे में आप याद रखिए नो डीए, नो डेली अलाउंस। ठीक है, अच्छा, रीइंबर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस आप देख लीजिए। रीइंबर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस में बताया था, फूड चार्जेस के लिए
कि जो पे लेवल 14, यहां पर देखिए 14 एंड अबोव, 14 एंड अबोव था 1500 रुपीज, है कि नहीं, कि 12 टू 13 ए ये था आपका 1250, कितना था 1250, कि 9 टू 11 कितना था फूड बिल चार्जेस, इट इज रुपीज 1125, ये था ना, तो 6 टू 8 कितना था 1000 ये था, मगर मैं बोला था उसका टाइम लिमिट के हिसाब से ये मिलेगा, आप कितना घंटा एब्सेंट रहते हो, हेडक्वार्टर से आप जो अदर स्टेशन को गए कितना घंटा आप एब्सेंट हो, उसके हिसाब से आपको ये जो फूड बिल चार्जेस आपको मिलेगा, उसको ही हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर देख लीजिए कि फूड बिल के लिए नो सेपरेट फूड बिल रिइंबर्समेंट इज अलाउड, कोई फूड बिल देना जरूरत नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ए फिक्स्ड लम सम अमाउंट आपको मिलेगा डेली अलाउंस में, इज पेड टू फूड एक्सपेंसेस, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा मगर टाइम लेवल में, दिस अमाउंट डिपेंड्स अपॉन योर पे लेवल, पे लेवल के हिसाब से मैं अभी बताया, जैसे 14 एंड अबव है 1500 है, अभी मैं क्लैरिफाई किया, 12 टू 13 है 1250 है, और जैसे 6 टू पे लेवल 6 टू 8 है 1000 रुपीज है, और जो मैं बताया कि पे लेवल 5 एंड बिलो 625 रुपीज पर डे है, तो योर पे लेवल एंड ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स से यदि आप ऑफिशियल पर्पज में जा रहे हो अदर स्टेशन को, तो कितना घंटा आप एब्सेंट रहे, वो एब्सेंट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, लेस देन 6 आवर्स मैं बताया था, 6 टू 12 आवर्स एंड मोर देन 12 आवर्स, इसमें कोई वाउचर्स और रिसिप्ट जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर आप टेबल देख लीजिए, जो आपका जो फूड एक्सपेंसेस है लेस देन 6 आवर्स आपको 30% ऑफ लमसम डीए मिलेगा, तो सपोज आपका पे लेवल आता है 6 टू 8 में, 6 टू 8 में कितना फूड एक्सपेंसेस में आता है 1000 रुपीज आता है, इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, आपका आप एब्सेंट रह गए, लेंथ ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर लेस देन 6 आवर्स, लेस देन 6 आवर्स 30% मिलेगा, 30% 1000 रुपीज का कितना होगा 300 रुपीज मिलेगा। अच्छा, बिटवीन 6 टू 12 आवर्स, बिटवीन 6 टू 12 माने 6 आवर्स 12 आवर्स बोथ इंक्लूडेड 70% मिलेगा, सपोज 1000 रुपीज है फूड बिल एक्सपेंसेस है तो आपको 700 रुपीज मिलेगा, ठीक है, और मोर देन 12 आवर्स आप एब्सेंट रहते हो तो 100% मिलेगा, 1000 रुपीज मिलेगा, तो ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, क्लियर। जो फूड एक्सपेंसेस के ऊपर आपको जो रिइंबर्समेंट मिलता है, ठीक है, जो डेली अलाउंस मिलता है इसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, लेस देन 6 आवर्स 30%, बिटवीन 6 टू 12 आवर्स 6 आवर्स 12 आवर्स बोथ इंक्लूडेड 70%, मोर देन 12 आवर्स 100%। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू SR 71 सप्लीमेंट्री रूल 71, ये जो ऑप्शंस कैलकुलेट होता है मिडनाइट टू मिडनाइट, इसको याद रखिए, जो ऑप्शंस कैलकुलेट होता है ये जो कैलकुलेट हम करेंगे मिडनाइट टू मिडनाइट, ओके, एंड इट इज कैलकुलेटेड डे वाइज पर डे बेसिस, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर और एक ऑप्शन दिया है, आप देखिए, व्हेन एन एम्प्लॉय, ये ऑप्शन को पढ़िए, व्हेन एन एम्प्लॉय ट्रैवल्स और स्टेज ऑन गवर्नमेंट शिप्स और बोट्स इन रिमोट एरियाज लाइक फॉरेस्ट माउंटेन्स यूजिंग फूट और मुल्स फॉर वर्क सच एज साइंटिफिक और सर्वे ड्यूटीज, जैसे फॉरेस्ट सर्वे की मैपिंग, जियोलॉजिकल वर्क, तो इस केस में तो उनको डेली अलाउंस कैसे मिलेगा, वही फिक्स है, जैसे आप सपोज पे लेवल 6 टू 8 है, इस वर्क में आप चले गए, इसमें जो फूड बिल है 1000 रुपीज है कि नहीं, 1000 रुपीज पर डे है फूड एक्सपेंसेस के लिए, तो वही फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा आपका। सपोज आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 700 है, मगर आपको एक्चुअली कितना मिलेगा, वही 1000 रुपीज मिलेगा, क्योंकि पे लेवल 6 टू 8 जो है फूड एक्सपेंसेस 1000 रुपीज है, ओके, 1000 रुपीज पर डे है मैक्सिमम, तो वो तो टाइम लिमिट के हिसाब से होता है, मगर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 700 है, मगर आपको 1000 रुपीज मिलेगा, मगर उसमें अप्रूवल चाहिए किसका, ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर, अप्रूवल चाहिए, यहां पर एक कंडीशन दे दिया, अप्रूवल चाहिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो देखिए डेली अलाउंस इज बेस्ड ऑन, डेली अलाउंस इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल बिल्स, ठीक है, डीए विल बी गिवन इक्वल टू द नॉर्मल फूड अलाउंसेस, फूड बिल एंटाइटलमेंट फूड बिल के हिसाब से, और मैं बताया था जो फूड बिल है जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग के हिसाब से होता है, सपोज आपका मोर देन 12 आवर्स हो गया,
इस पर्पज में, दीज आर द डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। और आपका पे लेवल है सपोज 9 to 11 है, 9 to 11 में आपका कितना है फूड बिल, अप टू 11:25 है, और ग्रेटर देन 12 आवर्स आप एब्सेंट हो इसी पर्पज में, तो आपको 11:25 मिलेगा। मगर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, सपोज एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1000 है, मगर वही 11:25 मिलेगा। यदि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इससे ज्यादा है वही 11:25 मिलेगा, मगर किसका अप्रूवल चाहिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर का अप्रूवल चाहिए, वही फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, मगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेगुलेशन ऑफ डेली अलाउंस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। आप देख लीजिए, सपोज लोकल जर्नी, SR 71 बोल रहा है यदि लोकल जर्नी में जा रहे हो, सेम सिटी लोकल एरिया, लोकल जर्नी हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेटर देन 8 किलोमीटर, याद रखिए। जो लोकल जर्नी मीन्स सपोज एक जो म्युनिसिपल एरिया है कि कैंटनमेंट है, ओके, कि अर्बन एग्लोमरेशन है, तो ये जो एरिया स्पेसिफिक है। मगर लोकल जर्नी जब कैलकुलेट कैसे होगा, मोर देन 8 किलोमीटर आपका जर्नी होना चाहिए, ग्रेटर देन 8 किलोमीटर, उसको भी स्पेशल मैं डिस्कस करूंगा फ्यूचर एक्चुअली वीडियो में। मगर यहां पर याद रखिए लोकल जर्नी में आपको जो डेली अलाउंस मिलेगा वो 50% मिलेगा, डेली अलाउंस 50% मिलेगा। सपोज मेरा पे लेवल है, आप देख लीजिए लोकल जर्नी में, सपोज मेरा पे लेवल है 12 है, ठीक है, तो 12 के लिए कितना है, अप टू 1250 है, ₹1250। यदि मेरा ग्रेटर देन 12 आवर्स मेरा अब्सेंस होता है फ्रॉम हेडक्वार्टर, तो मुझे कितना, लोकल जर्नी केस में इसका कितना मिलेगा, 50% मिलेगा, और मोर देन 12 आवर्स एब्सेंस है फ्रॉम द हेडक्वार्टर, ठीक है, तो लोकल जर्नी में 50% डीए मिलेगा, ठीक है। सेकेंड चीज देखिए, एनफोर्स्ड हॉल्ट, इसमें क्या हुआ, इफ यू आर स्टक ड्यूरिंग जर्नी ड्यू टू रीजन्स लाइक फ्लड, हेवी रेन, ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन, तो इसको ड्यूटी ट्रीट किया जाए। आप जर्नी कर रहे हो मगर उसमें क्या है, आपका जर्नी स्टक हो गया, क्योंकि रीजन है कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, कि कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया ड्यू टू सर्टन कमोशन, ओके, तो इस केस में वो जो आपका जर्नी जो स्टक हो गया, जो हॉल्ट हो गया, इट इज ट्रीटेड एज ड्यूटी और आपको फुल डीए मिलेगा, ठीक है। ये SR 51 बोल रहा है, एनफोर्स्ड हॉल्ट में आपका जर्नी चल रहा है मगर सडन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाएगा, कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, आपका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्या उसमें आपको वो ड्यूटी माना जाएगा कि नहीं, ड्यूटी माना जाएगा, तो फुल डीए इज अलाउड। थर्ड को चलेंगे, स्पेशल कैजुअल लीव रिलेटेड है, इसमें दे दिया वही SR 51, नॉर्मली व्हेन एन एम्प्लॉय इज ऑन टूर डेली अलाउंस इज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूटी। जब आप टूर में जा रहे हो, आपका जो ड्यूटी पीरियड है उसमें डेली अलाउंस आपको मिलता है, बट इफ ड्यू टू अनअवॉइडेबल सिचुएशंस लाइक कर्फ्यू हो गया, कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस हो गया, और आप जाकर जो आपका जहां पर ट्रेनिंग चल रहा है उसको अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि कर्फ्यू है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, आप होटल में स्टे किया, आप होटल से आप सपोज आप नहीं जा पाए वहां पर, आपका जो ट्रेनिंग सेंटर को कि ड्यूटी सेंटर को आप नहीं जा पाए, तो उसमें क्या होगा, वो डेज, सपोज आपका एग्जाम्पल जैसे मार्च आपका जो ट्रेनिंग था, सपोज मार्च इट मीन्स 18 to 24 था, ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग था, तो इसमें क्या है, ये जो 19-20 में आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कर्फ्यू हो गया, कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस हो गया, ठीक है, कर्फ्यू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस हो गया, तो इसमें आप अटेंड नहीं कर पाए, ओके, जिस पर्पज में आप ड्यूटी पर्पज में चले गए, टूर पर्पज में, आप वो टूर को अटेंड नहीं कर पा रहे हो, ये क्या होगा, ये पीरियड, ये दोनों को स्पेशल कैजुअल लीव डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, और डीए भी एडमिसिबल होगा, ठीक है, ठीक है, तो इसमें याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यदि आपका जो 18 आप अटेंड किए ट्रेनिंग मगर 19-20 आप अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि कर्फ्यू, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस से आप अटेंड नहीं कर पाए, कि आप जो टूर प्रोग्राम था, जिस पर्पज में आप टूर में गए हो, वो
एक्चुअली ड्यूटी पॉइंट में आप नहीं पहुंच पाए, तो ये 1920 क्या होगा, स्पेशल कैजुअल लीव डिक्लेयर होगा और उसमें आपको डीए एडमिसिबल होगा। मगर रीजन यहां पर है, यदि कुछ कर्फ्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस होता है उसी के वजह से, ओनली ड्यू टू दैट रीजन इफ यू कुड नॉट अटेंड योर ड्यूटी एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गए? नेक्स्ट वन, संडेज एंड हॉलीडेज। क्या संडेज एंड हॉलीडेज, सपोज आपका टूर पीरियड है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड है, तो संडेज हॉलीडेज में क्या आपको डीए मिलेगा? तो यहां पर कॉमन चीज बताया, नो डीए फॉर संडेज और हॉलीडेज। मगर कंडीशन है, यदि संडे हॉलीडे में आप काम कर रहे हो जाकर, ठीक है, इफ यू आर एक्चुअली वर्किंग, आप काम कर रहे हो, संडे हॉलीडे है मगर आप सपोज यू हैव गॉन फॉर टूर कि यू हैव गॉन फॉर ट्रेनिंग, बट बेसिकली संडेज एंड हॉलीडेज इफ देयर इज नो ट्रेनिंग, देयर इज नो वर्क, देन नो डीए। बट एक्चुअली यू आर डूइंग सम वर्क एंड एक्चुअली यू आर स्टेइंग ऑन कैंप, जो ड्यूटी पॉइंट में आप स्टे कर रहे हो क्योंकि कुछ प्लानिंग कर रहे हो, यू आर स्टेइंग एक्चुअली ऑन कैंप एंड यू आर मेकिंग सम प्लान। इट मीन्स making plan and strategy means also it means you are doing some work, future plan, you are doing some future plan, तो उसमें डीए मिलेगा। मगर बेसिकली यदि आपका जो संडे हॉलीडे में ट्रेनिंग नहीं है कि कोई भी ड्यूटी आप नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपको डीए नहीं मिलेगा। यदि आप काम कर रहे हो और आप कैंप में प्रेजेंट हो और फ्यूचर प्लान कर रहे हो, डीए मिलेगा। ठीक है, लीव ड्यूरिंग टूर। अच्छा, यदि आप लीव रहे, आप टूर में ऑलरेडी, इट मींस नाउ यू आर ऑन टूर एंड यू हैव टेकन लीव कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, तो उसमें आपको नो डीए फॉर दीज डेज, डीए नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, अनदर इंपॉर्टेंट वन, ये जो लीव ड्यूरिंग टूर SR 72 बोल रहा है, सप्लीमेंट्री रूल 72 बोल रहा है। अच्छा, कंटिन्यूअस स्टे लिमिट है SR 73, सप्लीमेंट्री रूल 73, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एट वन स्टेशन, जैसे टूर, टेम्पोररी ट्रांसफर, ट्रेनिंग, फास्ट 180 डेज फुल डीए मिलेगा। टेम्पोररी ट्रांसफर मींस जैसे आप टूर में चले गए कि ट्रेनिंग में चले गए कि आपका टेम्पोररी ट्रांसफर हुआ, फास्ट 180 डेज आपको फुल डीए, मगर बियॉन्ड 180 डेज नो डीए, याद रखिए। तो इसमें याद रखिए कि जो टूर है कि ट्रेनिंग है कि जो टेम्पोररी ट्रांसफर है, अप टू 180 डेज फुल डीए मिलेगा, बियॉन्ड 180 डेज डीए नहीं मिलेगा, क्योंकि बियॉन्ड 180 डेज वो टेम्पोररी नहीं होगा, वो परमानेंट ट्रांसफर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिए। तो कंटिन्यूअस स्टे SR 73, ये रूल पोजीशन को भी याद रखिए। ठीक है, लीव ड्यूरिंग टूर SR 72, कंटिन्यूअस स्टे लिमिट SR 73। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट 180 डेज आपको फुल डीए मिलेगा, बियॉन्ड 180 डेज नो डीए इन केस ऑफ टूर, टेम्पोररी ट्रांसफर और ट्रेनिंग। नेक्स्ट वन, 2 टूर्स इन 1 डे, SR 71 बोल रहा है। सपोज यू रिटर्न फ्रॉम वन टूर एंड स्टार्ट अनदर ऑन द सेम डे, सेम डे में एक टूर से आप रिटर्न किया, फिर सेम डे में फिर आपका अनदर टूर स्टार्ट हुआ सेम डे में, तो क्या उसमें बोथ टूर्स आर कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर डीए? तो बोथ टूर्स आर कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर डीए, इसमें बोथ टूर्स आर कैलकुलेटेड सेपरेटली, बट टोटल डीए फॉर दैट डे ओनली 1 डेज डीए, टोटल डीए जो रहेगा जो ओनली 1 डे डीए के हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो जैसे 1 टूर में आप रिटर्न किए, 1 टूर में जब रिटर्न आप आ गए, उस दिन में सपोज आप जैसे मिडनाइट टू, हम कैलकुलेट करते हैं मिडनाइट टू मिडनाइट। सपोज एक मैं एग्जांपल आज का डेट बता रहा हूं, जैसे आज मार्च 19 है, आप एक टूर से रिटर्न आ गया और इसमें सपोज आप मॉर्निंग में पहुंच गए, 8 AM में आप रिपोर्ट किए, तो आप प्रीवियस मिडनाइट से कैलकुलेट कीजिए, ये 8 घंटा हो गया, मोर देन 6 आवर्स हो गया, ये फास्ट टूर का मोर देन 6 आवर्स, मोर देन 6 आवर्स मीन 70% डीए। सपोज आप पे लेवल, आपका पे लेवल है 8 है, तो उसमें कितना है, 1000 रुपीज है आपका डीए, ठीक है, अप टू 1000 रुपीज, अप टू 1000 रुपीज। सो मोर देन 6 आवर्स मीन्स आपको कितना मिलेगा, 70% मिलेगा, इसमें 700 मिलेगा, ठीक है नहीं? तो फिर सेम डे आप फिर स्टार्ट कर दिया अनदर टूर के लिए, फिर आप जर्नी स्टार्ट किया, मगर आपको कितना मिलेगा, अनदर 300, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 डे का डीए ही मिलेगा। जिस सेम डे आप एक टूर से रिटर्न आते हो और फिर अनदर टूर के लिए आपका जर्नी स्टार्ट करते हो,
तो वही मैक्सिमम वही 1000 रुपीज जो एक डे में जो अप टू 1000 रुपीज है। मेरा ये इमेजिनरी एग्जांपल में जैसे आपका पे लेवल 8 है, तो पे लेवल 8 में जो डेली अलाउंस है अप टू 1000 रुपीज है, तो उससे ज्यादा नहीं होगा। आप रिटर्न आ गए एक टूर से, फिर आपका अनदर टूर सेम डे में स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों हम अलग मानेंगे, सेपरेट मानेंगे, मगर एक दिन का डीए से ज्यादा नहीं होगा आपको जो मिलेगा डेली अलाउंस। ठीक है, तो अभी कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यू सी, an officer in pay level 12 undertakes an official tour. During the stay, the officer spends 6000 per day on hotel accommodation. As per the rules, what is the maximum amount that can be reimbursed for the hotel stay? अच्छा, पे लेवल 12 मीन्स आप देखिए इसमें क्लियरली 12 to 13A, पे लेवल 12 to 13 है, होटल अकोमोडेशन है ₹5625 पर डे, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, इसमें एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ओनली जीएसटी इसमें ऐड होगा। ठीक है, मगर यहां पर दे दिया कि अंडरटेक्स ड्यूरिंग द स्टे द ऑफिसर स्पेंड्स ₹6000 पर डे ऑन होटल अकोमोडेशन। आज पर द रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रीइंबर्स्ड फॉर द होटल स्टे? होटल स्टे के लिए कितना होगा? 5625। मगर ये जो है सपोज 6000, एक्चुअली एंटाइटलमेंट 5625, इसके ऊपर हम जीएसटी देंगे, इसके ऊपर हम जीएसटी देंगे। ठीक है, मगर ये जो 6000 रुपीज पर डे ऑन होटल अकोमोडेशन है, ये वो सपोज विदाउट जीएसटी है, ये विदाउट जीएसटी है, विदाउट जीएसटी। मगर एक्चुअली विदाउट जीएसटी कितना एंटाइटलमेंट है? 5625 है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए 6000 रुपीज जो पे किया विदाउट जीएसटी है, विदाउट जीएसटी। ठीक है, और एंटाइटलमेंट विदाउट जीएसटी कितना है? 5625 है। क्लियर? पे लेवल 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बीट बी, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following pay levels is entitled to actual expenses for an AC taxi for local travel within a city? मैं बताया था एक्चुअल जो एसी टैक्सी जो लोकल ट्रैवल में, लोकल ट्रैवल ओके 14 एंड अबव, आप देखिए इसमें लोकल ट्रैवल में एक्चुअल एक्सपेंसेस एसी टैक्सी मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन पे लेवल 7 इज ऑन टूर। पे लेवल 7 दिया है, इसको मैं एनसर्कल कर दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम डेली रिइंबर्समेंट दे कैन क्लेम फॉर फूड बिल्स? अच्छा, फूड बिल्स में 6 to 8 आप पे लेवल देखिए, पे लेवल 6 to 8 है, मैक्सिमम है 1000 रुपीज है, वही पूछा है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेली रिइंबर्समेंट? इट इज 1000 रुपीज। और आपको ओनली ऑप्शंस देखना है, मैं बताया था ग्रेटर देन, लेस देन 6 आवर्स, 6 आवर्स टू 12 आवर्स, एंड मोर देन 12 आवर्स। लेस देन 6 आवर्स 30%, 6 to 12 आवर्स 70%, मोर देन 12 आवर्स 100%। तो मैक्सिमम रिइंबर्समेंट मींस अब 1000 रुपीज है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन ऑफिशियल इन पे लेवल 10 दिया है, यहां पर पे लेवल 10 है। व्हाट इज द सीलिंग फॉर लोकल ट्रैवल एक्सपेंसेस पर डे इफ दे यूज ए नॉन एसी टैक्सी? अच्छा, लोकल ट्रैवल में पे लेवल 10 आप देखिए 9 to 11 पे लेवल, इसमें लोकल ट्रैवल नॉन एसी, लोकल ट्रैवल ओके नॉन एसी टैक्सी ओके, और इसमें मैक्सिमम रिइंबर्समेंट है 420 रुपीज 50 पैसे पर डे। ये है ना, इसको मैं बोला था 420 रुपीज 50 पैसे पर डे, पे लेवल 9 to 11। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पे लेवल एंड होटल अकोमोडेशन। अच्छा, होटल अकोमोडेशन देखिए पे लेवल 5 पॉइंट बिलो, ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो है एक्चुअली करेक्ट वन, पे लेवल 5 पॉइंट बिलो होटल अकोमोडेशन पर डे इट इज 562 रुपीज 50 पैसे। लेवल 9 to 11 करेक्ट है, 2812 रुपीज 50 पैसे। लेवल 13A नहीं, ये गलत है, लेवल 12 to 13A इट इज 5625। और लेवल 6 to 8 ये भी गलत है, 937 रुपीज 50 पैसे।
तो उसमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन ऑफिसर इन पे लेवल 13 travels 65 किलोमीटर इन ए डे यूजिंग एन एसी टैक्सी फॉर लोकल ट्रैवल, अप टू हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन दे क्लेम रीइंबर्समेंट अंडर द स्टैंडर्ड डेली लिमिट। मैं बताया था कि पे लेवल 12 to 13 ए जो लोकल ट्रैवल में, इसमें एसी टैक्सी में 50 किलोमीटर पर डे, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इससे ज्यादा नहीं होगा 50 किलोमीटर पर डे। पे लेवल 12 to 13 है, यदि वो लोकल ट्रैवल करते हैं तो उनका जो मैक्सिमम ट्रैवल रहेगा इसी टैक्सी में 50 किलोमीटर रहेगा पर डे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, आप देखिए यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट, इस तरीके का क्वेश्चन आजकल आ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको डिटेक्ट करना है। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन, 3 स्टेटमेंट्स गिवन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेली अलाउंस, रिलेटेड है ड्यूरिंग ए टूर टाइम में, इसको भी मैं अंडरलाइन कर दिया। तो अंडर SR 71 सप्लीमेंट्री रूल 71, इफ ए लोकल जर्नी इज अंडरटेकन विद इन द सेम सिटी 100% DA इज एडमिसिबल टू कवर इंसिडेंटल कॉस्ट। ये गलत है, क्योंकि लोकल जर्नी में 50%, लोकल जर्नी में 100% DA नहीं, 50% DA। अच्छा अंडर SR 51, if an employee is stuck due to a transport breakdown, the period is treated as duty and full DA is allowed। ठीक है, यदि आप टूर के लिए आप जर्नी में हो, मगर आप एक जगह में स्टक हो गया क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, कि कुछ सपोज कमोशन हो गया, कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, और वहां पर कोई भी व्हीकल्स मूवमेंट नहीं किया और वहां पर आप हाल्ट कर लिए, तो उस केस में आपका वो जो है फुल DA मिलेगा और ऑन ड्यूटी माना जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, इफ एन एम्प्लॉय स्टार्ट्स ए सेकेंड टूर ऑन द सेम डे दे रिटर्न फ्रॉम द फर्स्ट, they can claim double DA, no double DA, same they can claim double DA for that specific day, no, जो स्पेसिफिक डे में जो मैक्सिमम लिमिट है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ओनली 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, विथ रेफरेंस टू स्पेशल कैजुअल लीव एंड हॉलीडेज ड्यूरिंग ए टूर, स्पेशल कैजुअल लीव एंड हॉलीडेज ड्यूरिंग ए टूर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, हम करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। DA इज नॉट एडमिसिबल इफ एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड स्पेशल कैजुअल लीव ड्यू टू कर्फ्यू इन द टूर स्टेशन, इज नॉट एडमिसिबल, गलत है, एडमिसिबल मिलेगा। सपोज सडन आपका टूर पीरियड है, सडनली कर्फ्यू हो गया, कि कुछ कमोशन हो गया, जो व्हीकल एक्चुअली द व्हीकल्स आर नॉट प्लाइंग ऑन द रोड, ओके, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में आप जाकर जो टूर जिस पर्पज में गए थे, आप ड्यूटी पॉइंट में नहीं पहुंच पाए, कि आप ट्रेनिंग जो प्लेस है वहां पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कुछ रीजन के वजह से, क्योंकि वहां पर कर्फ्यू हो गया, कि ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस हो गया, तो वो जो पीरियड है उसको स्पेशल कैजुअल लीव डिक्लेयर किया जाएगा और फुल DA मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। नॉर्मली DA इज नॉट अलाउड फॉर संडेज एंड हॉलीडेज अनलेस द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग और स्टेइंग ऑन कैंपस, ये करेक्ट है। जो संडेज हॉलीडेज में नॉर्मली DA नहीं मिलेगा जब आप टूर ट्रेनिंग में हो, मगर हाँ यदि संडेज हॉलीडेज में आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आप वर्क में इन्वॉल्व हो, ठीक है, जो आपका ऑफिशियल वर्क है, आप इन्वॉल्व हो संडेज हॉलीडेज में, तो वहां पर DA मिलेगा। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। टेकिंग ए रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ड्यूरिंग ए टूर रिजल्ट्स इन द फॉरफीचर ऑफ DA फॉर दैट डे, करेक्ट है। यदि आप टूर टाइम में आप रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले लिए, कि कोई लीव ले लिए, क्या उसमें आपको ड्यूटी माना जाएगा? वो ड्यूटी नहीं माना जाएगा। यदि ड्यूटी नहीं माना जाएगा तो DA कैसे मिलेगा? DA भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें आप देख लीजिए 2 और 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट आंसर पूछा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9,
two statements given. Okay, so which of the following is correct? दोनों टू स्टेटमेंट्स में देखेंगे हम क्या करेक्ट है. फुल डीए इज अलाउड फॉर द फर्स्ट 180 days of stay at a single station for training or temporary transfer. एब्सोल्युटली करेक्ट है. यदि आप ट्रेनिंग में कि टूर में कि टेम्पोररी ट्रांसफर में आप चले गए, आपको फुल डीए मिलेगा अप टू फर्स्ट 180 days, नॉट बियॉन्ड ऑफ दैट. ये ठीक है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 180 days डीए इज रिड्यूस टू 50% फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द स्टे. ये गलत है, क्योंकि बियॉन्ड 180 days आपको डीए नहीं मिलेगा. याद रखिए, टेम्पोररी ट्रांसफर, ट्रेनिंग और जो टूर, इसमें सिंगल सपोज स्टे में अप टू फर्स्ट 180 days आपको डीए मिलेगा. बियॉन्ड ऑफ दैट ओके यू आर नॉट एंटाइटल फॉर डेली अलाउंस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. तो उसमें आप देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. If an employee on tour cannot work due to a curfew or law and order disturbance and the period is treated as special casual leave, which of the following is true? DA is not admissible since the employee is on leave. Only 50% DA is allowed. DA is still admissible for that period. DA is allowed only if the employee stays in a government guest house. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डीए मिलेगा क्योंकि आप कुछ रीजन के वजह से ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए, कि आप ड्यूटी पॉइंट में नहीं पहुंच पाए. कर्फ्यू है कि आपका ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस हो गया, उसके वजह से तो वो पीरियड को स्पेशल कैजुअल लीव डिक्लेयर किया जाएगा और आपको एज यूजुअल डीए मिलेगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू SR 72 व्हाट इज द रूल फॉर डीए ऑन संडेज एंड हॉलीडेज व्हाइल ऑन टूर. मैं बताया था अभी, यदि आप टूर में हो और संडेज हॉलीडेज में वो टूर में कोई भी काम नहीं हो रहा है तो आपको डीए नहीं मिलेगा. हाँ, संडेज हॉलीडेज में यदि आपका जो आपका टूर है, जैसे आपका कोई ट्रेनिंग है कि जिस वर्क पर्पज में आप वहां पर गया है तो वो आप काम कर रहे हो तो डीए मिलेगा. ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर टूर एक्चुअली पीरियड, संडेज एंड हॉलीडेज. इफ यू गो टू द वर्क साइट एंड एज यूजुअल यू डू योर वर्क एंड यू स्टे इन द कैंप एंड मेक द फ्यूचर प्लान, देन डेफिनेटली डीए इट मींस यू आर एंटाइटल फॉर डीए. मगर संडेज हॉलीडेज में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको डीए नहीं मिलेगा. तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नो डीए इज अलाउड अनलेस द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग और स्टेइंग ऑन कैंप ऑन ड्यूटी. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच फुल डीए इज अलाउड at a single station during a tour, transfer or training under SR 73 first 180 days. सपोज सिंगल आप टूर में चले गए, टेम्पोररी ट्रांसफर में चले गए, ट्रेनिंग में चले गए, जो फास्ट 180 डेज है वो सिंगल स्टे है. फास्ट 180 डेज आपको डीए मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा. बियॉन्ड ऑफ दैट नहीं मिलेगा. तो ये SR सप्लीमेंट्री रूल 73, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल पोजीशन को याद रखना है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 13. An employee returns from one tour and starts another tour on the same day. How is the DA calculated for that specific day under SR 71? सपोज में आप देखिए, आपका पे लेवल 8 है और पे लेवल 8 में डीए मैक्सिमम है 1000 रुपीज पर डे, यही है ना. तो इतना ही मिलेगा, चाहे आप उस दिन में आप एक टूर में गए थे, रिटर्न आ गए, फिर उसी दिन आपका अनदर टूर स्टार्ट हुआ, मगर आपको जो मैक्सिमम डीए मिलेगा वही 1000 मिलेगा. चाहे आप सेपरेट है, दोनों टूर सेपरेट है, मगर वन डे का जो मैक्सिमम डीए है वही मिलेगा. ठीक है, डबल डीए नहीं मिलेगा. सेम डीए, सेम वन डे का जो मैक्सिमम है वही मिलेगा. तो उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा. ये SR 71 बोल रहा है. ठीक है, SR 71 बोल रहा है. तो बोथ tours are calculated separately and double DA is paid. No, both tours are calculated separately but the total DA cannot exceed 1 day's DA. यही करेक्ट होगा. Only the first tour is considered for DA. DA is allowed for the tour with longer duration. ऐसा नहीं, इसमें ऑप्शन B is the correct answer. Both tours are calculated separately
दोनों टूर कैलकुलेट सेपरेटली होगा, बट द टोटल डीए कैनॉट एक्सीड 1 डेज डीए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है आप डिटेक्ट करेंगे. इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट्स गिवन, ठीक है, रिगार्डिंग द रीइंबर्समेंट ऑफ होटल अकोमोडेशन फॉर पे लेवल 8 एंड बिलो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अच्छा, पे लेवल 8 एंड बिलो होटल अकोमोडेशन 937 रुपीज, यू नो कितना था पे लेवल 8 एंड बिलो? 937 रुपीज 50 पाइस, 6 to 8 और 562 रुपीज और अनदर वन 562 रुपीज 50 पाइस. ओके, पे लेवल 5 एंड अबव. तो उसके ऊपर हम देखेंगे. अच्छा, आप देखिए पे लेवल 8 एंड बिलो होटल अकोमोडेशन, इसको भी अंडरलाइन कर दिया. होटल क्लेम्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट कैन बी मेड थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन विदाउट सबमिटिंग एक्चुअल बिल. से करेक्ट है. तो आपको देखा होगा पे लेवल 8 एंड बिलो उनको बिल देना नहीं पड़ेगा, ओनली आप सेल्फ सर्टिफाई कर दो कि किस प्लेस में आप थे और होटल का नाम क्या था, ऐसे एक सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आप दे दो. ठीक है, पे लेवल 8 एंड बिलो कोई वाउचर कोई बिल देना जरूरत नहीं है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन द एम्प्लॉय मस्ट मेंशन द पीरियड ऑफ स्टे एंड द सेम ऑफ द होटल और प्लेस. करेक्ट है. तो सेल्फ सर्टिफिकेशन में आपको मेंशन करना है कि कितना पीरियड आप स्टे किया और होटल का नाम क्या था और होटल किस प्लेस में है. द डेली लिमिट फॉर होटल रिइंबर्समेंट फॉर लेवल 8 एंड बिलो इज नो, ये गलत है क्योंकि आप देख 900 होटल आप देखिए 937 रुपीज 50 पाइस ये जो है पे लेवल 6 to 8 है, ठीक नहीं, और 562 रुपीज 50 पाइस ये पे लेवल 5 एंड बिलो है. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है. क्लियर. फोर्थ वन आप देख लिए, इन क्लास एक्स सिटीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल बिल्स इज मैंडेटरी. यस, क्लास एक्स सिटीज में बताया था मैंडेटरी है, आपको बिल देना है और पर डे में कितना बोला था 1250 रुपीज. ये स्पेशल है. ये यदि क्लास एक्स सिटीज में पे लेवल 8 एंड बिलो कोई एम्प्लॉय जिसका पे लेवल 8 एंड बिलो है और उसके लिए पर डे स्टे होटल अकोमोडेशन 1250 होगा. ओके, क्लास एक्स सिटीज के लिए मैं डिस्कस कर चुका हूं, मगर उसमें आपको बिल देना पड़ेगा, इसमें बिल देना पड़ेगा, मैंडेटरी है. तो उसमें आप देख लीजिए इनकरेक्ट ओनली ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3. तो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है. ठीक है, तो उसमें आंसर इज ओके बिट ए. ओनली थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगेन आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे. द होटल एंटाइटलमेंट लिमिट्स प्रोवाइडेड इन द रूल्स आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. नो, जो होटल एंटाइटलमेंट है वो एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है, इंक्लूडिंग नहीं. मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं. जीएसटी इज पेड एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब्ड एंटाइटल लिमिट. ये करेक्ट है. टैक्सेस आर रिइंबर्स्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल चार्जेस पेड प्रोवाइडेड द बेस रेंट इज विद इन द एंटाइटलमेंट. Okay, taxes are reimbursed based on the actual charges paid provided the base rent is within the entitlement. Correct है. If an officer of level 13 has a limit of 5,625 and pays 5,500 होटल रेंट इतना दे रहा है और उसके ऊपर 12% जीएसटी और इतना, ये रिइंबर्स होगा, ये रिइंबर्स होगा. तो ऑप्शन इनकरेक्ट ओनली फर्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओनली इनकरेक्ट फर्स्ट है क्योंकि उसमें मैं बताया था कि जैसे पे लेवल 12 है और उसका होटल अकोमोडेशन है 5,625 पर डे है, मगर इसमें एक्सक्लूडिंग जीएसटी है. तो जब आप होटल रेंट जो आप ले रहे हो उसी के अंदर आपका होना चाहिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी. फिर जितना होगा तो उसके ऊपर आप जीएसटी दे दीजिए, मगर आपका जो विदाउट जीएसटी उसके अंदर होना चाहिए. ठीक है, फिर उसके ऊपर जीएसटी इंक्लूड होने से प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी ओवर एंड अबव चला जाएगा. तो उसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओनली आई जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन में भी ऑप्शंस जो है रिगार्डिंग लोकल ट्रैवल एंड ट्रैवलिंग चार्जेस फॉर पे लेवल 11 एंड बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा है. पे लेवल 11 एंड बिलो लोकल ट्रैवल में बताया था 11 एंड बिलो आप लोकल ट्रैवल में तो नॉन एसी टैक्सी में आप ट्रैवल करते हो और लिमिट भी है.
तो उसमें जब ट्रैवल करते हो उसका आपको बिल देना नहीं पड़ेगा, ओनली आपको देना पड़ेगा कि जो व्हीकल में आप मूव किए नॉन एसी टैक्सी में, आप कितना आपका पीरियड आप मूव किए और उसमें व्हीकल नंबर क्या है ये देना पड़ेगा आपको, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी देना पड़ेगा। तो वही आप देख लीजिए, टैक्सी और ट्रैवल क्लेम्स कैन बी टेकन विदाउट बिल्स थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन, करेक्ट है। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर ट्रैवल मस्ट इंक्लूड डिटेल्स लाइक द पीरियड ऑफ ट्रैवल एंड व्हीकल नंबर, करेक्ट है। इवन फॉर क्लास एक्स सिटीज ट्रैवल क्लेम्स फॉर लेवल 11 एंड बिलो रिक्वायर मैंडेटरी सबमिशन, नो ये गलत है, ये नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि क्लास एक्स सिटीज में आप मूव कर रहे हो और पे लेवल 11 एंड बिलो जो है आपको मैंडेटरी रिसिप्ट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिइंबर्समेंट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्चुअल फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनली, वो भी करेक्ट है। रिइंबर्समेंट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्चुअल फेयर ऑफ पब्लिक, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसका बात नहीं है। लोकल ट्रैवल में आप नॉन एसी टैक्सी में भी जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप लोकल आप देख लीजिए, दिल्ली अलायंस में बताया था लोकल ट्रैवल, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो यहां पर इनकरेक्ट जो है वो 3rd and 4 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 9 to 11, यदि आप 9 to 11 लोकल ट्रैवल, 9 to 11 लोकल ट्रैवल नॉन एसी टैक्सी में मूव करते हो, नॉन एसी टैक्सी मूव कर रहे हो, मगर आपका जो पर डे रिइंबर्समेंट होगा 422 रुपीज 50 पैसे, ओके क्लियर। तो ऑप्शन यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। 17 देखिए, फॉर द पर्पोज, क्वेश्चन नंबर 17, for the purpose of calculating daily allowance under SR 71, absence from headquarters is calculated on which of the following basis? मैं बताया था जो absence from headquarters जो आप calculate करोगे midnight to midnight, day wise basis from midnight to midnight, option B is the correct answer, ठीक है। Question number 18, an employee is absent from headquarters for a period of 9 hours 30 minutes, व्हाट परसेंटेज ऑफ द लम सम डीए? अच्छा मैं बताया था लेस देन 6 आवर्स आप हेडक्वार्टर से एब्सेंट होते हो ऑफिशियल पर्पज में, आपको 30% डीए मिलेगा। 6 to 12 आवर्स, ओके 6 to 12 बोथ इंक्लूडेड, 6 आवर 12 आवर्स बोथ इंक्लूडेड, 70% डीए मिलेगा, और ग्रेटर देन 12 आवर्स आपको 100% डीए मिलेगा। तो यहां पर क्या है, 6 to 12 आवर्स के अंदर है तो 70% मिलेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 19, to claim 100% of the lump sum DA, the length of absence from headquarter must be 100% lump sum DA। यदि आप लेना चाहते हो तो आपका absence रहेगा हेडक्वार्टर से ऑफिशियल पर्पज के लिए, आप अदर स्टेशन को गए तो उसमें आपका absence रहेगा मोर देन 12 आवर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, in which of the following scenarios is DA is paid as fixed lump sum amount equal to the food allowance rate but requiring approval from the head of the department? अच्छा फर्स्ट वन दिया है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन स्टेइंग ऑन गवर्नमेंट शिप्स और बोट्स, ये करेक्ट है। ट्रैवलिंग इन रिमोट एरियाज माउंटेन्स और फॉरेस्ट यूजिंग फुट और मूल्स, एंगेजिंग इन साइंटिफिक सर्वे और जियोलॉजिकल मैपिंग ड्यूटीज, ये भी ठीक है। ट्रैवलिंग बाय एयर टू क्लास एक्स सिटी, ये नहीं है। मैं आपको बताया था यदि आप सपोज आप स्टे कर रहे हो ऑफिशियल पर्पज में, आप जा रहे हो स्टे ऑन गवर्नमेंट शिप्स और बोट्स, स्टे ऑन गवर्नमेंट शिप्स और बोट्स, कि आप रिमोट एरियाज को ट्रैवल कर रहे हो जैसे माउंटेन्स फॉरेस्ट यूजिंग फुट और मूल्स, कि आप साइंटिफिक सर्वे कर रहे हो, कि जियोलॉजिकल मैपिंग ड्यूटीज कर रहे हो, उसमें आपको वही सपोज आपका पे लेवल है 8 है, तो आपका कितना है मैक्सिमम डीए कितना है 1000 रुपीज है, तो ये 1000 रुपीज आपको मिलेगा, चाहे आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर इससे कम है कि ज्यादा है, आपको वही 1000 रुपीज मिलेगा मगर उसमें आपका अप्रूवल चाहिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए, मगर वही फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगा। तो इसमें जो दिया है ऑप्शन हम देखेंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक्चुअली करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आज 20 क्वेश्चंस था, मेरा पार्ट 1 था तो टीएडीए का, तो फिर आप वेट कीजिए मेरा सेकंड पार्ट। तो डेफिनेटली
आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस रिलेटेड में और डेली अलाउंस रिलेटेड में। तो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।